In Pakistan Railways, are we doing CPFR? The problem is most of the people engaged in railways do not even know what they are doing and how advanced the concept is. They cannot map these two things. Although they are applying all these things, but they cannot define it properly. So, are we doing CPFR? In which case? In the case of the stores, they give an acquisition to the workshops whenever the level depletes. So the workshop produces and they supply the required products to the different stores. With any outside agency? With any outside agency? Fuel PSO. Another example is maintenance contract ZCU 2030. Need assessment is made jointly with the Chinese engineers. They are on board from the very beginning. They are collaborating. Then they are planning. उसके एक अलग वो बहुत एक लंबी स्टोरी है उसके पीछे कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ. That is whole another story. I can tell you about that as well. कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ. अभी आगे देखते हैं उस स्टोरी. So supply chain system slacks. System slacks से क्या मतलब है? This is my profile for your just to shared here because of if you need to see or do something related to it, want to do something related to it. हाँ इसीलिए है इस पे हमने टाइम नहीं जाया करना. अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे अगर बात करें, and it comes to global supply chains, तो इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. रॉ मटेरियल कहीं पे बन रहा होता है, डेवलपमेंट कहीं पे हो रही है, सब असेंबलीज कहीं पे बन रही हैं, फाइनल प्रोडक्ट कहीं और से आ रही है, और अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी ग्लोबल हैं. कोई कहीं पे है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, को कहीं पे है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रीजन को फीड अगर दुबई से किया जा रहा है तो प्रोडक्ट इज मेड इन यूएसए, some parts may be made in China, and after that they are finished in USA, and after that they are being sent to DC distribution center at Dubai, and after that it will be transported to Pakistan. So इस तरह से इसमें आपकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रॉब्लम्स डिफरेंट आना शुरू हो जाती हैं. रिसेंट आपके इवेंट्स हैं पेंडेमिक के बाद. एक और एग्जांपल लेते हैं. सिंगल स्विंग मशीन, एक सिंपल स्लाई मशीन है. तो बॉडी शेल्स आर फ्रॉम यूएसए, मोटर्स फ्रॉम ब्राजील, ड्राइव शाफ्ट्स फ्रॉम इटली, assembled in Taiwan and sold around the world. So supply chain complexity discuss कर रहे हैं. Same is the case with this fur coat, a simple fur coat. It is not being produced at a single point. Thailand, a leading exporter of fur. Then Taiwan, which specializes in making material for outdoor clothing. It produces the shell and fleece. Germany will give you the snap fastener. China, world's largest producer of cotton. The lining will be made from China, Chinese product, and Japan, the global biggest producer of stainless steel for zippers. So it poses distinct and new challenges for the supply chains.
because any disruption in any of these will result in the failure of complete supply chain. So the strength of the supply chain lies in, or commonly known as the famous proverb, the strength of a chain lies in its weakest link. So if there is a disruption in supply chain, there will be a disruption in railways case, there will be a disruption in operations. अब अमूमन लोग पूछते हैं कि जस्ट इन टाइम, ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है जस्ट इन टाइम. सो what Toyota did, they went on just in time, zero inventories or least inventories. The result was, on some times, on some instances, there were operational failures. So if you can afford the operation failure, you can move on just in time as well. It depends. Then you have to define the service levels. At what service level you want to engage the clients. So the challenge of globalization is continued trends to offshore sourcing and focused factories bring reduced costs of purchase manufacture. NAFTA. North American Free Trade Agreement. European Union. In China, they do consortium buying. They consolidate the demand of the whole country and buy the raw materials and then distribute it at the country level. American countries made an agreement in order to facilitate the nearby countries, the neighboring countries. European Union, they have clubbed together. And after the introduction of pandemic, the reverse of this concept, inshoring. Inshoring, what is inshoring? Or nearshoring? Because there are instances of disruptions due to pandemic, due to port congestion, Suez Canal issue, then port congestion in US causes disruptions of supplies. So the reverse is also equally applicable on case-to-case basis. That is inshoring or nearshoring or in-house development of the products. So this is your global environment. There is a focal firm, organization. There is an internal phase. On one side, there will be customers. On the other side, suppliers. And this is your whole organizational environment. What does it mean by internal facing? Internal facing is within the organization. When we talk about Pakistan Railways, it means within the organization. The customers will be your passengers or customers related to freight, and the supplier facing will be your material suppliers. So the relationships, supplier performance, human resource, supply chain disruptions, supplier environment, market dynamics, disasters. After that, political and country situation and supplier financial regulatory authority bodies, different. Then on internal facing organizational level issues are or disruptions can be operational,
technical, financial, legal, regulatory, environment, HR, health and safety, or political. And on the customer end, the disruptions can be related to financial, distribution, relationship, market, brand reputation, product liability, environmental, and political. The list can be populated as per requirement of the organization, or some points can be eliminated depending on case-to-case basis. And if we say that store purchase or mechanical is itself an organization, a department, if you call it an organization. So let's take an example of mechanical department as an organization. Who will be the customer? Who is the customer of mechanical department? No, the operational departments, like the department that trained. Production department. Traffic and commercial. They are your customers. And who will be your suppliers? Stores. Store purchase or workshops. In the case of store purchase, the organization is store purchase. So who will be the suppliers? It can be workshop or it can be Workshops outside source. Outside sources, and the customers are Mechanical department or workshop. all the departments who require the products from stores. So the total cost of ownership, it is also called whole life cycle cost. Whole life cycle cost. Any idea what is total life cycle cost or total cost of ownership or life cycle cost? सर प्रोडक्ट को बनाने में जो जो उसमें सोर्सेज यूज हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके वेयर हाउस के जो रेंट वगैरह और इस तरह जितनी भी, ये तो प्राइस में शामिल होगा सब कुछ। एक होती है कॉस्ट, एक होती है प्राइस। आप जो डिफरेंस बता रहे हो वो कॉस्ट और प्राइस का बता रहे हो। कॉस्ट या प्रोडक्ट की, प्राइस में ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं आप, और फिर बल्कि कॉस्ट में ही शामिल कर देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, प्राइस पे आपका मार्जिन आ जाता है ऊपर, प्लस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। फेमस टर्म है इसके, मुझे इतने का पड़ा है और मैं इतने का बेच रहा हूँ। द कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन उर्दू। द कॉस्ट इज हाउ मच इट कॉस्ट यू। इसमें तो मुझे कुछ बच ही नहीं रहा, कॉस्ट टू कॉस्ट। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनी आइडिया? इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये तो हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाईज। अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाईज क्या है? आज चीज चाहिए थी, 10 दिन बाद मिल रही है और आपने इंजन निकालना है, एक आइटम की वजह से 10 दिन बाद मिली, और एक और कंपनी वही प्रोडक्ट आपको 10 रुपए महंगी दे रही थी लेकिन अभी दे रही थी। 3000 बंदा फारिग बैठा रहा वर्कशॉप में, ये प्रोडक्ट नहीं आई। कौन सी प्रोडक्ट बेहतर होगी? वो उसके मुताबिक तो आपने गलत कर दिया।
महंगी प्रोडक्ट ले ली। अभी आप जस्टिफाई करोगे जाके 10 से 12 हमारा नुकसान होना, कितना नुकसान होना था, उसको मैयर कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसको मैयर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेजरमेंट अभी तक रेलवेज में की नहीं जाती रही और आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं एडवांस चलें, लेकिन हर दफ़ा आप नहीं चल सकते क्योंकि आपके पास उसमें लिमिटेशंस है, बजट लिमिटेशंस आ जाती हैं, फोरकास्टिंग ठीक नहीं है और मैनुअल है सारा सिस्टम उस वजह से। इसलिए समटाइम्स ये अनसर्टेनिटी causes major losses, then longer lead times। एक चीज मार्केट से मिल रही है, एक चीज बाहर से आनी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? सर मंगवाने वाले कि उसमें किस टाइम पे जो है ना दोबारा रीऑर्डर करना है। अब इशू क्या आता है, स्टोर परचेज में अमूमन एक सवाल उठता है कि जी आपने मटेरियल अवेलेबल नहीं किया, क्यों नहीं हो सका? डिमांड जनरेट कब होनी है और कितना पहले जनरेट करना है उसको डिमांड को, फिर उसके बाद आपकी कंडीशंस, टफ कंडीशंस रखते हैं, फिर उसमें खुद घूमते रहते हैं। अभी एक रिसेंट केस हुआ है मेरे पास, मैं इंस्पेक्शन में था, DCPI लकड़ी की इंस्पेक्शन है, उसके साथ स्लीपर की स्पेसिफिकेशन लगाई हुई है और वो सॉफ्ट वुड देयार वुड जो थी वो यूज होनी है उसके अंदर, बोगी के अंदर। अब जो वर्क्स मैनेजर है वो कहता है कि मेरे लिए ये यूजलेस है, मैं उसकी इंस्पेक्शन क्या कर सकता हूँ जाके? तो स्पेसिफिकेशन मैच नहीं कर रही रिक्वायरमेंट से। देन पाकिस्तान रेलवेज के टेस्टिंग का मेथोडोलॉजी है, क्यूब रूट फार्मूला इज अडॉप्टेड। अब आप एक मटेरियल ले रहे हैं जिसकी टेस्टिंग पाकिस्तान रेलवेज में अवेलेबल नहीं है और बाहर वाली एजेंसी उसकी टेस्टिंग कॉस्ट ले रही है आपसे तकरीबन क्यूब रूट के मुताबिक 5 मिलियन। अब एक कंपनी को इतना मार्जिन है और अगर उसका मटेरियल ठीक है तो वो अल्टीमेटली 5 मिलियन पाकिस्तान रेलवेज को पे करता है। तो 3 करोड़ की कंसाइनमेंट पे 50 लाख रुपए की टेस्टिंग जस्टिफाइड है। किसने डिफाइन करनी है? जिसने मटेरियल इस्तेमाल करना है वही करेगा ना डिफाइन, मैं तो नहीं कर सकता डिफाइन उसको। तो अब वो मटेरियल पड़ा हुआ है और वो डिफाइन नहीं हो रहा कि वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है मैं, क्योंकि एज पर क्लॉज अगर वो मटेरियल फेल होता है, टेस्टिंग फेल होती है, तो फिर आप उससे पैसे ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, अदरवाइज रेलवे हैज टू पे। आपके पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, मटेरियल डिले हो रहा है, स्पेसिफिकेशन में आपने इतनी रिफाइंड प्रोडक्ट मांगी है जो अवेलेबल ही नहीं है, प्रोडक्ट पड़ी है, फेल हो गई है, आउटकम अफेक्ट हो गया। रिपोर्ट इज स्टोर ने मटेरियल नहीं दिया, आपने जो स्पेसिफिकेशन दी थी मैंने तो उसी पे वैल्यूएट करके देना ना, मैं आपको खुद से तो नहीं मटेरियल दे सकता, ना मैं उसको रिलैक्स कर सकता हूँ किसी भी कंडीशन को स्पेसिफिकेशन, और ना मैं उसको उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। I'm a contract manager, I'm a procurement manager, I'm a warehouse manager, but I cannot interfere in design of specifications। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे काम खराब होता है ना वो सारा स्पेसिफिकेशंस पे होता है, और फिर उस वक्त जब आप बिल्कुल नेक टू नेक होते हैं, आउटकम इफेक्ट नहीं होती है, उस वक्त फिर क्या होता है, अच्छा इसमें अमेंडमेंट कर दें, which raises major concern on part of audit and on part of investigation agencies।
और वो बड़ा जस्टिफाइड वैलिड कंसर्न है कि आपने जानबूझ के कंडीशन डाली जब फुलफिल नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा यार ये तो हो नहीं सकता, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक दो बंदे आए, they have participated and afterwards you have relaxed that condition. So they take it as a fraud that you are trying to oblige a certain contractor. सर तो अगर उसमें स्पेसिफिकेशन में चेंजेस आ जाती है तो दोबारा वो टेंडर नहीं होगा कि रीटेंडर। अब यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रीटेंडर में 2 महीने लगने हैं, लेबर फारिग रहेगी, गाड़ियां नहीं निकालनी। मिनिस्ट्री ने कहा गाड़ी निकालनी है, WM साहब बैठे हुए हैं, रो रहे हैं कि मेरे पास मटेरियल नहीं है, मैं क्या करूं। तो वहाँ पे स्टोर परचेज क्या करे, स्पेसिफिकेशन तो मैंने नहीं दिखाई ना। लेकिन सर ये तो उस कंडीशन में होता है जब आप पहली बार आइटम मंगवा रहे हो, लेकिन कुछ भी ऐसा आइटम है जिसका हमें पहले से रिकूप लेवल भी पता है, उसका लीड टाइम भी पता है, तो उसमें तो फिर वो नहीं आना चाहिए, डिले नहीं आना चाहिए। हमें पता है ये कितने फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है और ठीक प्रीडिफाइंड उसके थ्योरेटिकली आपकी बात ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि लोग आंखें बंद करके बैठे होते हैं, चल रहा है जैसे चल रहा है, वर्क प्रेशर है, लेट इट गो लेट इट गो। फिर एक बंदा आता है, वो किताब खोल के बैठता है, कहता मैं नहीं ऐसे करूंगा। फॉर एग्जांपल रेलवेज एक स्टेटस देती है जब सप्लायर्स को रजिस्टर करती है एज अ मैन्युफैक्चरर, तो हम एक ब्लैंकेट अप्रूवल देते हैं कि यू आर रजिस्टर्ड एज अ मैन्युफैक्चरर। मेरा जो इस वक्त करंट डिप्टी CCP टेक्निकल है, उसने इस पे इतराज उठा दिया। उसने कहा कि जी मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हाट, you have to specify the products. आप इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, अब आप कहेंगे कि जनाब मैं इंजन के पुर्जे भी बनाता हूँ, मैं लकड़ी भी बनाता हूँ, क्या यू हैव टू स्पेसिफाई। बात टेक्निकली ठीक है। अब आज तक ये नहीं हुआ, उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा। You have to define and specify that you are the manufacturer of what. आपके पास फैसिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, तो आपके पास हर कैपेबिलिटी तो नहीं ना हो सकती। आप गाड़ी भी बनाते हैं, आप उसके बाद जो है वो LEDs भी बनाते हैं और आप फर्नीचर भी बना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर आप बनाते हैं तो आपको हर फैसिलिटी को अलग-अलग एवेल्युएट करवा के रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अलग-अलग ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं मिलेगी मैन्युफैक्चरर। अब ये टेक्निकली करेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये रिफाइनमेंट चेंजेस आती हैं सिस्टम में। System corrects itself with the passage of time. So, less visibility and increased likelihood of bullwhip effect. Bullwhip effect क्या है? bullwhip देखिए कभी? जो डिमांड में सर वो डिस्टॉर्शन आ रहा है, जो बुल्स को हंटर मारते हैं, हल्का सा हाथ ऐसे हिलाते हैं और वो एंड पे रिपल इफेक्ट क्रिएट करके हिट करता है ठीक ठाक तरीके से। ये टेक्निकल टर्म है बुलविप इफेक्ट, जो है सप्लाई चेन्स में यूज होता क्या है? होता यूं है कि आपको मटेरियल चाहिए, आपकी स्टोर परचेज से फरमाइश आएगी कि सर हमें 500 आइटम्स ले रहे हैं। अब वो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट नहीं है, आप क्यों 500 डिमांड कर रहे हैं? यार मिलती तो है नहीं है, कभी कभी मिलती है तो मैं स्टॉक कर लूँगा। आपकी इंटेंशन बैड नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट है 50, मांगी आपने 500, मांगी आपने 500। अब आप जैसे 10 और कंज्यूमर बैठे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में और वो भी यही काम कर रहे हैं। नाउ द एक्चुअल रिक्वायरमेंट इज 500 एंड व्हाट आई एम रिसीविंग इज 5000। रिजल्ट क्या होगा? उसके बाद अगर डिजाइन चेंज हो जाए, आपने 4 साल का मटेरियल लेकर रख लिया, अगले डिजाइन चेंज हो जाए, प्रॉब्लम वेस्ट जाएगा। दूसरा इशू क्या हो सकता है?
कि आपका बजट है लिमिटेड और कोई की कंपोनेंट रेलवेज नहीं खरीद पाती। एज अ रिजल्ट अगेन मिसमैच एंड डिसरप्शन इन ऑपरेशंस। तो डिमांड मैनेजमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे आगे भी उसको भी, लेकिन उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे करना रिजल्ट्स इन बुलविप इफेक्ट, नेगेटिव बुलविप इफेक्ट। इंडस्ट्री से अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेल्स वालों को इंसेंटिव मिलता है कि इतनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपको एक टूर पे भेजा जाएगा। अब अगर एक प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 1 साल और नवंबर या दिसंबर है, तो वो कहता है कि आप अगले 6 माह का स्टॉक ले लो, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। अब सेल्स चलेगी ऊपर, आर्टिफिशियली ऊपर चलेगी। आप जो मंथली एवरेज थी उसके बजाय 6 माह का स्टॉक ले लिया और ऐसा किया 10, 20, 30, 40 सेल्समैन ने। अब कंपनी का ऑनर बड़ा खुश होगा कि यार मेरी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही हैं, तो ही विल इंस्टॉल अनदर प्लांट, नई हायरिंग करेगा, नया प्लांट लगाएगा, कैपेसिटी इंक्रीज कर देगा। और उसके बाद क्या होगा? जनवरी में 6 महीने का स्टॉक तो पहले निकल गया है। वो बजाय इसके कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन से भी नीचे चला जाएगा। जो उसकी आम प्लांट की कैपेसिटी है वो भी यूजलेस वेस्ट हो रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बैंकरप्ट, कंपनी बंद। एक पॉजिटिव भी तो साबित हो सकता है, डिमांड और बढ़ जाए। पॉजिटिव कभी भी साबित नहीं होता है, ये हमेशा नेगेटिव होगा। हो तो सकता है मेरे तो पॉसिबिलिटी डिमांड और बढ़ जाए। आपने ये डिमांड, यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उसको असेस करना होता है, उसको असेसमेंट होती है कि वो एक्चुअल डिमांड इंक्रीज है, उसके फिर आपको फैक्टर्स असेस करने पड़ेंगे, सिर्फ उसकी सेल्स को नहीं देखना। इसमें काफी चीजें आ जाती हैं। आप जैसे एक मिनट, जिस तरह से आप, जैसे मैंने अभी WMs किया, किसी भी इंडेंटर की एग्जांपल दी है, आपकी एक पिछला मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मैं आपको डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ाऊंगा। मेरे पास 3 साल में आपने एक चीज इस्तेमाल की है 10, आज आप मेरे से 100 क्यों मांग रहे हैं? हिस्टोरिकल डाटा। फिर उसके बाद आप उसका क्वांटिटेटिव मेथड भी है, आप पूछते हैं उनसे कि आपको क्यों चाहिए ज्यादा। इन सर्टेन केसेस जस्टिफाइड भी होता है, जैसे आप जो बात कर रहे हो उसमें मैंने फ्यूल इंजेक्टर्स थे वो चाहिए थे, तकरीबन 4 लाख का एक फ्यूल इंजेक्टर था, 600 फ्यूल इंजेक्टर्स मांग रहे थे, उसकी एमसी बहुत कम थी। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी ये 3 साल के बाद मेंटेनेंस होती है, इस चीज पीरियोडिक मेंटेनेंस आफ्टर 3 इयर्स, इसलिए ये 3 साल इस्तेमाल नहीं हुआ, अब होगा। लेकिन हर प्रोडक्ट में तो ऐसा नहीं होगा, ये रेयर इंस्टेंस होगा, एक्सेप्शन है। उसको फिर आप जस्टिफाई करवाते हैं, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको जस्टिफाई करता है। अदरवाइज अगर आप हर केस में करना शुरू कर देंगे तो फिर आप ना बजटिंग कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होगी। होता आपको किसने कहा नहीं होता? पढ़ेंगे भी, पढ़ाऊंगा मैं अभी, अगला लेक्चर है आपका, 3rd लेक्चर परसों होगा, फोरकास्टिंग पे ही है। रेलवेज की भी पढ़ेंगे, क्या क्या तरीके हैं वो भी देखेंगे फोरकास्टिंग के। सो लॉस ऑफ कंट्रोल इन क्वालिटी, पुअर क्वालिटी, रिटर्न भेजना पड़ गया प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट वापस भेज दी, अब क्या फायदा? आपके लिए तो यूजलेस है, वारंटी क्लेम में चला गया। लॉन्गर डेवलपमेंट साइकिल्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू सिक्योरिटी रिस्क। अब आप ग्लोबल ट्रेड वॉर्स क्या हैं आपकी? यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, रिजल्ट क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है और इवन डिसरप्शन भी।
अभी GE वालों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है, because Pakistan explicitly says that we will not import any goods from India and Israel. अब GE वाले कहते हैं कि जी आप इसको थोड़ा सा ना टर्मिनोलॉजी को और तरह से लिखते हैं कि we will follow the regulations of rules and regulations, prevailing rule and regulations of Pakistan. इसराइल का नाम ना लिखें, अमेरिकन माइंड करते हैं. Caterpillar is owned by a Jew. So is the case with Wabtec and General Electric. वो माइंड करते हैं, इसलिए आप ये काम ना करें, लेकिन we have to write it down in explicit terms because it is the policy of government of Pakistan. So we have to adopt and follow the prevailing policies. So how you will calculate the total cost of ownership? सैल्वेज वैल्यू भी इसमें आएगी. पूरी लाइफ में एक क्रेन अगर 2 लीटर ऑयल यूज करती है पर आवर वर्किंग में, दूसरी 6 लीटर करती है, उसके स्पेयर्स की कॉस्ट क्या है, लोग कितने इन्वॉल्व हैं उसकी वर्किंग में, उसकी पूरी लाइफ 10 साल है या 20 साल है या 5 साल है, उसके साथ साथ उसका डाउन टाइम कितना होगा, मेंटेनेंस टाइम कितना रिक्वायर्ड है. जितने फैक्टर्स हैं वो आपको जॉट डाउन करने हैं. वो करने के बाद आप उनके फैक्टर्स देते हैं, उनको वेटेज असाइन करते हैं. वेटेज असाइन करने के बाद आप कंपैरिजन करते हैं दोनों का, एंड दैट विल डिफाइन टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप. अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते चीज़ों को, या आपके पास उस तरह की टेक्निकल अवेलेबिलिटी नहीं है. लेकिन जो आपके इंटरनेशनल टेंडर्स हैं डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के, उसमें ये कुछ होता है, उसमें बकायदा स्कोर शीट बनती है, उसमें गेज करते हैं डिफरेंट तरीकों से. फॉर एग्जांपल आफ्टर सेल्स सर्विस 5 पॉइंट्स हैं आपके हर स्टेशन पे. मेजर स्टेशन पे अगर एक है सर्विस सेंटर तो वी विल गिव यू 5 पॉइंट्स, और 2 स्टेशन पे तो 3 पॉइंट्स. सक्सेसफुली आपने प्रीवियसली कितनी जगहों पे सप्लाई किया, वो फ्यूल कंजम्पशन. इस तरह से आप डिफरेंट फैक्टर्स पे आप क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं और उस क्राइटेरिया पे वैल्यूएट होता है. पेपरा ने पहले लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड की टर्म यूज की थी. लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड इज क्या होती है? सबसे सस्ता. सब कहते हैं सबसे सस्ता. The problem is we have no proper reading skills. पढ़ते नहीं हैं हम लोग. पेपरा ने लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड को डिफाइन किया है, the bid that most closely conforms to the evaluation criteria. So is it the price only? ये मिसकॉन्सेप्शन थी जो एक अरसे से चली आ रही थी. अब पेपरा ने क्या किया कि उसको रिवाइज किया है. उन्होंने कहा इन लोगों ने नहीं पढ़ना, हम अपनी टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं. अब वो लिखते हैं इसको मोस्ट एडवांटेजियस बिड. अभी भी तशरीह मोस्ट एडवांटेजियस बिड की वही है, द बिड दैट मोस्ट क्लोजली कंफॉर्म्स टू द एवेल्युएशन क्राइटेरिया. लेकिन यह है कि क्योंकि लोग लोएस्ट वैल्यूएटेड बिड पे हमेशा प्राइस पे जाते थे, जबकि ये कभी भी प्राइस नहीं रहा. अगेन व्हाट इज योर एवेल्युएशन क्राइटेरिया? यू हैव टू डिफाइन द एवेल्युएशन क्राइटेरिया. आप प्राइस रख रहे हो तो फिर प्राइस ही है. अगर आप उसमें ये फैक्टर्स डाल दोगे, बेशक 50 डाल दो, 100 डाल दो. लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर सेल्स सर्विस होनी चाहिए, पाकिस्तान में होनी चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं. मैं 90 मार्क्स उसके देता हूँ, 10 मार्क्स प्राइस को देता हूँ. नोबडी कैन क्वेश्चन. आई हैव टू डिफाइन द क्राइटेरिया. उस पे आपने उसको गेज करना है. मैंने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया था कि लास्ट 10 ईयर्स में आपने कम से कम 20 कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के साथ किए और हर साल में 2 किए मिनिमम.
आई वॉज कॉल्ड बाय द चीफ कंट्रोलर, तुमने ये क्राइटेरिया जानबूझ के रखा है। मैंने कहा सर क्यों? ताकि आप चाहते हो कि काम ना हो। मैंने कहा ऐसा करते ही नहीं है, आई हैव द जस्टिफिकेशन फॉर दिस क्राइटेरिया। क्यों रखा है? द रीजन इज कि आप 5, 10, 20 करोड़ का एक काम करवाना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू असेस द कैपेबिलिटीज के वेदर द कॉन्ट्रैक्टर कैन कैरी आउट द सेट वर्क, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसकी, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो जहां से हाल रोड से उठ के आ जाएगा, वो मुझे कोटेशन दे देगा और मैं 2 साल उसको भुगतूंगा भी, और उसके बाद वो कोर्ट में भी चला जाएगा, तो मेरा तो काम भी ना हुआ और मैंने पैसे भी सारे बाउंड कर लिए, मेरा बजट भी सारा लैप्स हो गया। तो देयर शुड बी साउंड रैशनल बिहाइंड इट। You can define the criteria, you are free to define the criteria, but there should be a rationale behind it. So these are some of the reasons why global supply chains, जब global supply chains की बात आती है तो vulnerability increase हो जाती है। क्यों? फैक्टर्स ज्यादा आ जाते हैं उसमें। एक कंपनी जो पाकिस्तान में सिर्फ ऑपरेट करती है, यू हैव टू डील विद दैट, एंड डीलिंग विद सम इंटरनेशनल कंपनी, एंड व्हेन इट कम्स टू सम कंपनीज दैट हैव मल्टीपल प्रोडक्शन सोर्सेज, डिफरेंट कंट्रीज प्रोडक्शन प्लांट लगे हुए हैं, वहां पे और भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमारी एक फरमाइश होती है, हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन लाजमी मांगना होता है। अब कंपनीज की आगे से रिस्पांस क्या है, जिसको हम अभी तक इसको डिसाइड नहीं कर पाए इस फैक्टर को, ये बड़ा एक मेजर कंसर्न है। कंपनीज का इशू ये है कि आपका टेंडर फाइनलाइज होते होते 6-8 माह लग जाते हैं, एलसी खुलनी और ये सारा कुछ, इसमें इतना प्रोसेस में टाइम लगता है। तो हमारे पास प्रोडक्शन लाइन में मटेरियल आ रहा है, कोई मैक्सिको में बन रहा है, कोई चाइना में बन रहा है, वो बन उसी स्टैंडर्ड पे रहा है, कोई यूएस में बन रहा है, कोई कहीं पे, वो हमारे वेयर हाउस में जिस वक्त आप फाइनली रिक्वायर कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट आपकी आई, जिस वक्त हमने कोट किया उस वक्त से लेके उस पीरियड के दरमियान में इतना तो वक्त गुजर चुका होता है, उस वक्त जो बैच हमारे पास अवेलेबल होगा हम आपको वो बैच दे देंगे। अब अगेन उस पर ऑर्डर ऑब्जेक्शन है कि आपने अमेरिकन प्रोडक्ट कहा था और आपने चाइनीज प्रोडक्ट किया, तो इट्स नॉट द चाइनीज प्रोडक्ट, इट इज मेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड्स, बट द प्रॉब्लम इज कि आपने उसको डिफाइन उस तरह से किया हुआ, या तो आप उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में उसको इस तरह से गुंजाइश रखें उसके लिए। सो लीन प्रैक्टिसेस ये पढ़ेंगे हम, आगे लेक्चर है आपका प्रोग्रेसिव मॉडल्स इन सप्लाई चेन, उसमें हम लीन प्रैक्टिसेस को देखेंगे। Move to offshore manufacturing and sourcing. Offshore again different countries involved हो जाती हैं। Outsourcing and reduction in supplier base, limited supplier base. TPFR का अगर benefit है या strategic sourcing का या sourcing का, तो उसका कुछ drawback भी है कि आपने अपने आप को limit कर लिया है, quality control होगी सारा कुछ, लेकिन अगर कंपनी ब्रेक डाउन करती है किसी भी वजह से तो there will be a disruption. Then global consolidation of supplies, जैसे मैंने अभी आपको बताया बैच प्रोडक्शन, तो उस वक्त बैच कौन सा पड़ा है, किसका पड़ा हुआ। सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल सोर्सिंग, एक ही जगह से ले रहे हैं, उसका अल्टरनेट नहीं है कोई भी। पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट में जो आप बात कर रहे थे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट क्यों फ्रीज हुआ था, दैट वाज पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, सोनली पुअर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। और उसमें भी एक चीज सिर्फ थी कि इन लोगों ने प्रॉपर डिफाइन नहीं किया था। पूरी जो चाइनीज के साथ नेगोशिएशन होती रही उसमें आप पेनल्टी क्लॉजेस डिफाइन करते रहे कि अगर इंजन डाउन टाइम इससे ज्यादा हुआ तो ये पेनल्टी होगी, इससे ज्यादा हुआ तो ये पेनल्टी होगी। वो डिस्कस तो होता रहा, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा तो हुआ है लेकिन वो इतना वेग है कि उसकी पाकिस्तान रेलवेज डेफिनेशन और करता है, चाइनीज उसकी डेफिनेशन और कर रहे हैं।
चाइनीज की डेफिनेशन के मुताबिक उस पे पेनल्टी चार्जेस नहीं लगते या बहुत नॉमिनल से लगते हैं। पाकिस्तान रेलवेज की डेफिनेशन के मुताबिक $3 मिलियन बनते हैं। वो कहते हैं इतने तो हमें मिल नहीं रहे जितने आप मांग रहे हैं हमारे से, सुपरवाइजरी चार्जेस इतने हमारे बन नहीं रहे जितने आप मांग रहे हैं। तो द प्रॉब्लम वाज कि इट वाज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपरली डिफाइंड नहीं था। नेगोशिएशन एंड कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस पे मैंने एक एक्टिविटी भी बनाई थी, वो शायद से आपको दी थी, वो कराएंगे आपको, उस पे वो लेक्चर देंगे। तो नेगोशिएशन का भी एक तरीका होता है जो हमारे यहाँ पे नहीं अडॉप्ट किया जाता। इसके लिए बकायदा एक आपकी स्कोर शीट होती है, बकायदा यू प्लान फॉर इट, पूरा एक टाइम इस पे लगाना पड़ता है। आपकी टीम सिलेक्शन होती है, आपने प्राइमरी सेकेंडरी गोल्स डिटरमिन करने होते हैं, क्या हम कुछ कहाँ पे मार्जिन दे सकते हैं, लैटिट्यूड दे सकते हैं, कहाँ पे नहीं देना। तो इस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं है कॉन्सेप्ट। नेगोशिएशन किस तरह से होती है कि जी कल मीटिंग है, हम सारों ने जाना है, जाके वहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या होता है। दिस इज नॉट द वे हाउ यू नेगोशिएट और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस, प्राइस नेगोशिएशन हो सकती है? नो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग में हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती। पेपरा मना करती है सर। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस, नेगोशिएट प्राइस के अलावा भी बड़ी चीजें होती हैं। प्राइस भी मैं तो समझता हूँ कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं। कैसे? पेपरा मना करती है लेकिन कर सकते हैं। ट्विन मतलब में टू स्टेजेस जिसमें पहले आप टेक्निकल वो उसमें तो टेक्निकली ऑल्टरनेट होता है ना, उसके अलावा भी एक तरीका है। डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड पेमेंट्स, चीज आज ले रहा हूँ, पैसे साल बाद दूंगा। नेगोशिएशन आ गई, चीज आज ले रहा हूँ, पैसे 6 माह बाद दूंगा। कंपनी भी कह सकती है प्रोडक्ट चाहिए, पैसे एडवांस में दो, कह सकती है ना, मैं नहीं दूंगी, पहले मुझे इन एडवांस पेमेंट करो, फिर पैसे, फिर मिलेगी प्रोडक्ट। नेगोशिएशन आ गई, टाइम इज मनी, पैसे पे नेगोशिएट हो रहा है ना, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस पे नहीं आप कर सकते। तो अगेन चीजें जो होती हैं वो उसके मल्टीपल फेसेस होते हैं, डिफरेंट रुख होते हैं। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शंस, मैं भी गया हूँ, यूरोप करके आया हूँ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। आपने सारी उसकी, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में अगेन जो टर्म्स लिखी हैं, जो टेस्ट लिखे हैं, वो सारे एवेल्युएट करने हैं, वहाँ पे करने हैं, फॉर्म प्रेमिसेस पे करने हैं, सैम्पलिंग करनी है, करना है। एक अभी रिसेंट कुछ लोगों को सजा भी हुई थी इस पे। क्यों हुई थी? नहीं, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल के साहिबान बैठे होंगे, इलेक्ट्रिकल सुना है केस, सुना है जनरेटर्स का केस, पता है कि नहीं पता? नहीं पता। कॉन्ट्रैक्ट में था कि देयर विल बी अ रिमोट रेडिएटर विद द जनरेटर, देयर विल बी अ रिमोट रेडिएटर। यहां से साहिबान गए, फॉरेन टूर है, सैर करनी है, ठीक है, मैं कहा जी ये जनरेटर है, हाँ जी बेहतरीन है, चला के दिखाएं, चलता भी है, ठीक है, रेडिएटर साथ ही लगा हुआ था उसके। जी इस मॉडल में तो होता ही नहीं रिमोट। अब आपके टेंडर में लिखा हुआ कि वी वांट रिमोट रेडिएटर, and a couple of 3 or 4 officers have been punished, demoted, who went on pre-shipment inspection। सिर्फ सैर नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ सैर नहीं है, अगर कहीं पे नाम आ जाए तो उसको पढ़ के जाना है कि वहाँ पे करना क्या है। सर तो डीपीओ के केस में भी तो वो 20 में आता है जी,
लोकोमोटिव्स का केस हुआ था वो बीच में लोकोमोटिव का जो फेलियर है वो दैट वाज सोनली ऑन पार्ट ऑफ, उस पे मैं वैसे कमेंट नहीं करना चाहता कि उनको 6 माह पहले आप सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बड़े बेहतरीन लोकोमोटिव्स हैं और 6 माह बाद आप कहते हैं कि ये बिल्कुल ही फारेग हैं। चलिए उसके फ्रेम में क्रैक्स थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसको हम ठीक भी कर देंगे। एक्सल लोड का भी इशू था। डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान रेलवेज डू नॉट वांट टू एंगेज विद एनी अदर कंपनी कि वो कामयाब हो सिवाय इसके जी के। ये प्रोक्योरमेंट जो है ये तो स्टोर में करनी होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल में क्या दिक्कत क्यों डाल रहे हैं? इंस्पेक्शन तो टेक्निकल हमने इसीलिए तो रखे स्टोर में, इंजीनियर से सारे। लेकिन हर बंदे का एक अपना रोल है। मैं इंजीनियर हूँ, आप भी इंजीनियर हो, ठीक है, आपके साथ 4 और लोग हैं, कंज्यूम किसने करना है मटेरियल? आपने करना है। मैं ले देता हूँ मटेरियल, मेरे मुताबिक ठीक है, आप कहते हो मेरे मुताबिक नहीं ठीक, मैं नहीं लगाऊंगा। दोनों करेंगे ना, फिर स्टोर वाले भी साथ आएंगे। स्टोर वालों का एक अपना रोल है, जो मैंने आपको बताया, मटेरियल को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, वो सारी चीजें उन्होंने देखनी है, आपकी डिमांड की रैशनैलिटी देखनी है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड कंज्यूमर ने देखने हैं, क्योंकि यूटिलाइज उसने करना है। आपकी भी शादी नहीं ना हुई होगी तो फिर आपको पता लगेगा मुश्किल है कि अगर एक ब्रेड आपको घर से आवाज आती है कि ये वाली ब्रेड लेके आनी है, तो आप किसी और बेकरी की ब्रेड लेके जाएं तो फिर आपको पता लगेगा कि ब्रेड तो वो भी ब्रेड है और ये भी ब्रेड है। ठीक है, क्या ख्याल है? तो इसलिए जिस बंदे ने यूटिलाइज करनी होती है ना प्रोडक्ट, उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप ये प्रोडक्ट क्यों यूटिलाइज कर रहे हो, अगर वो रैशनली कर रहा है। आवर रोल इज ऑफ कंट्रोलर, आपको कंट्रोल करना हमारा काम है, ठीक है। इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस करना, सारा उन सारे प्रोसेस यहाँ पे टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है, वो इसलिए कंज्यूमर को भेजा जाता है कि यूटिलाइजेशन उसकी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कि ये चीज इससे आप लाजमी ऐसे ही करो। स्टोर का काम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से नहीं, स्टॉक नंबर से होता है। हाँ, हमारा काम जो मैंने अभी आपको बताया था ना, आप देखो कि प्रोडक्शन के पीछे रॉ मटेरियल से लेके मटेरियल हैंडलिंग, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, कस्टम क्लियरेंस है, वेयर हाउसिंग है, हमारा काम उससे रिलेटेड है सारा। तो स्टोर में इंजीनियर्स का क्या काम? तो बाकी टॉपिक भी रख सकते हैं। रख सकते हैं, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैंने बल्कि ये प्रपोज भी किया था कि कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। आप सप्लाई चेन विद इंजीनियरिंग सप्लाई चेन की क्वालिफिकेशन साथ होनी चाहिए, एमबीए या एमएस इन सप्लाई चेन होना चाहिए कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उसको इंजीनियरिंग का भी पता होगा, सप्लाई चेन का भी पता होगा। उसका रीजन ये होता है कि अब आपके पास कीबोर्ड आया तो कम से कम मुझे ये तो पता हो कीबोर्ड है। अगर मुझे इतना भी नहीं पता होगा, अगर मैं इंजीनियर नहीं हूं तो आप इसको भी कीबोर्ड कही जाओगे तो मैं मान लूंगा, ठीक है। इसलिए कि उन्हें बेसिक इंजीनियरिंग का आइडिया होना चाहिए कि चीजें हैं क्या, प्रोडक्ट है क्या। एक लेमैन को जिसको बिल्कुल इंजीनियरिंग नहीं आती, उसको आप ये कहोगे कि ये सी 10 लाख का आता, वो तो बेचारा मान लेगा या मार्केट सर्वे कर लेगा, थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स चीज होगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ये है कि रोल्स जब डिफाइन हो जाते हैं तो डिफरेंट होता है। जैसे यूएसपी है, अनसोलिसिटेड प्रपोजल, उसको पेपरा डिफाइन कर रहा है कि 3 टेक्निकल मेंबर्स इवैल्यूएट करेंगे। अब आपकी बात को अगर मैं लेके चलूं तो Y3 एक बंदा नहीं कर सकता था उसको, वो भी इंजीनियर है, दूसरा भी इंजीनियर है, तीसरा भी इंजीनियर है, 3 बंदे क्यों कर रहे हैं इवैल्यूएट उसको? तो ये रोल है, डिफाइंड है। आप मुझे जब इलेक्ट्रिकल में भेज देंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में डी लगा देंगे, तो फिर मैं लाजमी बात है कि फिर मेरी जॉब है, मैं करूंगा। इट डिपेंड्स कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। कर सकने की बात नहीं है, आपका रोल क्या डिफाइन किया गया है, ये है चीज। कर सकने को तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं पहले टेलीकॉम में था, बाद में इधर आया। तो कैसे है ये? तो स्टोर में तो है ही टेलीकॉम। क्या? इंजीनियर्स कहते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल बस। हाँ, मैं पहले टेलीकॉम में था, मैं बता रहा हूँ टेलीकॉम ब्रांच में था,
मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं पहले टेलीकॉम ब्रांच में था, फिर बाद में इधर आया स्टोर परचेज में, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपकी जेडी पे डिफाइन कर, आप एज एन इंजीनियर आपको सीपीओ लगा देते हैं, चीफ पर्सोनल ऑफिसर। आप कहेंगे जी अब मैं एवेल्युएट करूंगा टेक्निकली, बेशक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं। डीजी विजिलेंस जॉब इज इंक्वायरीज। अब आप कहेंगे वो एवेल्युएट क्यों नहीं कर रहा, उसका रोल डिफाइंड है, इस वजह से नहीं कर रहा। आज आप उसको असाइन करते हैं, आप कहेंगे नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल वाला नहीं करेगा, आप ही किया करेंगे लोग। लेकिन फिर क्यों नहीं उसको छेड़ते? प्रॉब्लम इज कि आपको इतराज होगा कि जी मुझे ये प्रोडक्ट यूज नहीं करनी, ये मेरे लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। सो एलसी इश्यूज, एलसी ओपनिंग है, एलसी क्लियरेंस है, ये सारे। देन रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस एंड इनको टर्म्स, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बाद में पढ़ेंगे, आपको मैं मुख्तसर वैसे बता देता हूँ कि इंटरनेशनली सप्लायर को आप पे एतबार नहीं है, किसी भी सप्लायर को, और जो परचेज कर रहा है उसको भी एतबार नहीं होता पूरी तरह से। आप किसी बैंक में एलसी खुलवाते हैं म्यूचुअली, बैंक ने उन डॉक्यूमेंट्स पे ट्रेड करना होता है। जब वो डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स उसके पास आते हैं बैंक के पास, तो एलसी पेमेंट रिलीज कर देता है। एज अ गारंटर पेमेंट बैंक के पास होगी, ना सप्लायर के पास है ना बायर के पास है, दोनों के पास पेमेंट नहीं है, बैंक के पास है। वो डॉक्यूमेंट्स देखता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक है, उधर से डॉक्यूमेंट्स आए, उसने वेरीफाई करना, उसने पेमेंट कर देना। अब सप्लायर को भी ट्रस्ट है कि जब तक अगर ये डिफॉल्ट नहीं करेगा, बायर जो है ये नहीं करेगा कि मैं मटेरियल भेज दूँ, जी मैं तो पैसे नहीं देता, बैंक के पास है, बैंक एज अ गारंटर बीच में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। तो बाकी डिटेल है एलसी की, वो देखेंगे आगे। इनको टर्म्स हैं, ब्रेक करनी है। 2 घंटे का लेक्चर है यार, अभी तो बल्कि काफी रहता है, स्लो कर रहे थे। लेट भी आए हैं आप लोग वैसे आज काफी, हाँ तो 10 से लेट भी आए हैं। चलें, अटेंडेंस रोजा मेरे लिए होना चाहिए, पढ़ा मैं रहा हूँ यहाँ पे। तो जी, अनम आजम दुरानी, मोहम्मद शहरियार नबी, मुशर्रफ मजीद, अदनान खान, इकरा लतीफ, मोहम्मद राफे इकबाल, गौर हफीज, हानिया रहीम, चेतन दास, राजा मोहम्मद यूसुफ, सैला फॉक, लाल नबी, यस अब्दुल्ला कुरैशी, यासिर हुसैन, सालिक हारून अब्बासी, अबू बकर शौकत, मोहम्मद रिजवान अली, उमैर अली मेमन, यस सर जुल्फकार अली, अहमद आसिफ अली, अमजद अली, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सलमान, अहमद नूर, Yes. खाद कैसर खान अली, मुनीर अहमद। चले बस 2-3 स्लाइड्स करते हैं, फिर ब्रेक कर लेते हैं। सप्लाई चेन रिस्क, आपके रिस्क 2-3 जगहों पे होता है।
ये डिफरेंट नोड्स हैं, या तो विद इन द नोड यहाँ पे रिस्क होगा या इस जगह पे होगा रिस्क, या फिर इस जगह पे रिस्क आपका डिफरेंट जगहों पे हो सकता है। ज़्यादातर सप्लाई चेन रिस्क में आपका रिलायंस ऑन सप्लाई चेन मींस मोर रिस्क, जितनी ज़्यादा आपकी सप्लाई चेन बड़ी होगी उतना रिस्क इंक्रीज होता जाता है। लेसर सप्लायर्स होंगे तो रिस्क रिड्यूस होता जाएगा। देन ग्लोबलाइजेशन और लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि शिकागो पोर्ट का इशू आया, सुएज कैनाल का इशू आया, तो उसमें भी आपके बढ़ जाते हैं रिस्क। वेंडर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी रिस्क एंड पॉलिटिकल एंड करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क क्या होता है आपका? डेप्रिसिएशन। आपको पता कि उन्होंने जवाब दे दिया हुआ, टोयोटा ने प्लांट बंद कर दिया पाकिस्तान में फिलहाल, नो न्यू बुकिंग्स, रीजन करेंसी फ्लक्चुएशन। डॉलर कहीं पे खड़ा ही नहीं हो रहा, आपने इंपोर्ट्स करनी है, आप कितना को रीडिफाइन कर सकते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं डिफाइन हो पा रही। रोज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिवाइज हो रही है, आज इतनी होगी, कल इतनी होगी, कल इतनी होगी। तो सिर्फ चीप लेबर इज नॉट द इशू, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रिक्वायर्ड है, करेंसी स्टेबिलिटी भी रिक्वायर्ड है, उससे आपकी पूरी सप्लाई चेन इफेक्ट होती है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, आपकी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रिड्यूस होती है, जैसे पाकिस्तान रेलवेज का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। तो वो जो आपने रिस्क बताया वो मिटिगेट कैसे होता है? मिटिगेट कैसे होते हैं? रिस्क मिटिगेशन का तरीका है कि सबसे पहले तो रिस्क अवॉइडेंस है, फिर उसके बाद रिस्क ट्रांसफर है, या आप अवॉइड करते हैं पहले, फिर उसको ट्रांसफर करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको मैनेज करते हैं अगर आता है तो। और रेजिलियंस के टॉपिक में देखेंगे, रेजिलियंस में है कंसोलिडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सेविंग, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपकी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की वजह से हैं, और हमारा मेजर सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आप इसमें यूटिलाइज कर रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें आप रिस्पांस आपको फास्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बॉल पॉइंट्स खरीदने हैं, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे हेडक्वार्टर पहले बॉल पॉइंट खरीदेगा टेंडर करके और उसके बाद कराची भेजेगा। तो इसलिए तमाम केसेस में आप सेंट्रलाइजेशन नहीं कर सकते, सर्टेन केसेस में आप डिसेंट्रलाइजेशन भी करते हैं। आपको लोकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिफरेंट, उसकी बेस पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो इसलिए लो वैल्यूड आइटम्स के लिए नॉर्मली इसको प्रेफर किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इसके कब हम कहते हैं कि हमें डिसेंट्रलाइज की तरफ जाना चाहिए, कब सेंट्रलाइज की तरफ जाना चाहिए? प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं। सिस्टम में अगर सेंट्रलाइज पे फेल कर रहा है तो उसमें डिसेंट्रलाइज आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं और कितने अरसे के लिए चाहिए, उसके लिहाज से आप डिसेंट्रलाइज करेंगे ना। अगर कराची आपकी ट्रेन जानी कभी कभार है या कोयटा कभी कभार जाती है, उसके लिए आप पहले यहाँ से प्रोडक्ट्स भेजते हैं, उस लिहाज से आप देखते हैं। अब आपका जो ऑयल है, आप पीएसओ से ऑयल लेते हैं महमूद कोट पे और कराची में, दो जगहों पे लेते हैं, हर जगह पे क्यों नहीं ले रहे? हर स्टेशन पे लेना शुरू करते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं चीज़ें, कुछ में सेंट्रलाइज्ड बेहतर है, कुछ में डिसेंट्रलाइज्ड। 1 लाख तक के आइटम्स आपने आप एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी दे दिया, वैसे भी कि वो डिवीजन्स खरीदते हैं 1 लाख 2 लाख तक भी। क्यों दिया? इसीलिए दिया ना कि डे टू डे रूटीन के केसेस भी अगर आप कंसोलिडेट करना शुरू कर दें तो डिस्ट्रप्शंस आना शुरू, पैटी परचेज, उसके बाद आपके इंप्रेस्ड होता है 10, 15, 20 हज़ार तक की आइटम्स जो हैं, तो उसकी भी मेरा ज़ाती आइडिया ये कि उसकी थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे होना चाहिए। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, एक इंस्टेंस में ये हुआ कि स्प्लिटिंग करके एक एक आइटम करके लाख लाख 2-2 लाख करके 1.5 करोड़ की जो है वो चीज़ें जो है हवा में खरीद दी गई। तो उसका टाइम पीरियड थोड़ी डिफाइन है। तो
उसका मैं बता रहा हूँ ना कि टारगेट डिफाइन किया था ना, 1 लाख 2 लाख से ऊपर की नहीं खरीदेंगे। वो भाई साहब ने 1.5 करोड़ की चीजें जो है वो इस तरह करके ले ली, ठीक है। अब वो जब इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं तो फिर कंट्रोल्स दोबारा से फर्दर टाइट होना शुरू हो जाते हैं, मिस यूज या अब्यूज ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। अब आपके पास, आपको मैं दे देता हूँ बजट 5 करोड़ का और आपसे कहता हूँ कि 1 लाख या 2 लाख की आपके पास अथॉरिटी है, आप आते हो, ये सारे ही आपके दोस्त बैठे हैं, हाँ भाई किस किस की कोठी पे एसी नहीं लगा हुआ, टाइलें लगवानी है, बताओ, मैं लगवा के देता हूँ, मेरे पास बजट पड़ा हुआ, मैं लगवा देता हूँ। ये तो उसका बड़ा था। तो वो बड़ेपन के नतीजे में दोबारा से सेंट्रलाइजेशन हो जाती है। फिर आपको हर केस के लिए झूठियां चिटकानी पड़ती हैं कि हेडक्वार्टर सीईओ के पास जाओ, एजीएम के पास जाओ, तो केस की अप्रूवल लो। रीजन वाज बड़ापन। तो वेरिएंस 3 सोर्सेज ऑफ डिमांड अनसर्टेनिटी होती है, सीजनैलिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स और एंड कस्टमर डिमांड। वेरिएशन आने की डिमांड में 3 वजूहत होती हैं। सीजनैलिटी, सीजन विद सीजन आपकी रिक्वायरमेंट होती है, सर्दियों में और रिक्वायरमेंट है, कोयला सर्दियों में रिक्वायर्ड होगा, गर्मियों में नहीं होगा। तो इस तरह से बर्फ आपकी गर्मियों में टेंडर होता है वर्कशॉप्स में, सर्दियों में नहीं होता। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स एंड कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड, अब कुछ चीजें होती हैं वो साल में चलनी एक दफा से, पूरी डील इकट्ठी चलती है। ब्रेक करनी है, 5 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। सर जब से रेलवे में आया एक बात सुनने में आती है कि हमारे स्टोर जो है ना वो बिल्कुल खाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? भर दें स्टोर, रोना नहीं है फिर। सर नहीं, उस लिहाज से नहीं कहते कि अब मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, आप मैकेनिकल से हो? जी सर। वो कहते हैं कि मोस्टली प्रोडक्ट्स को खुद ही परचेसिंग में लगे रहते हैं, अपना काम छोड़ के परचेसिंग में, वर्कशॉप्स वगैरह। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, मेरी बात समझना जरा। अगर मैं आपको स्टोर भर दूं और आप कहोगे नहीं मुझे नहीं भरा हुआ चाहिए, देखो स्टोर्स में तकरीबन 30 to 40% मटेरियल पड़ा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो 30 to 40% क्यों पड़ा हुआ है? पहला कंस्ट्रेंट है उसमें पैसा। आप जो मुझे बजट दोगे मैंने उसमें आपको खरीद के देनी है चीजें, बजट मैंने नहीं एलोकेट करना। आप मुझे पूरा बजट ले दें, मैं आपको पूरी आइटम्स खरीद दूंगा, ठीक है। आपने भी मिनिस्ट्री से कॉल इन करने हैं फंड्स, मैंने भी कॉल इन करने हैं, रिस्पांस में नहीं आता बजट तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एबीसी क्लासिफिकेशन अभी आप पढ़ोगे, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी? ए क्लासिफाइड आइटम्स होती हैं, 10% आइटम्स होती हैं और 70% बजट होता है, पढ़ा? बी आई थिंक 70%, 20% और सी क्लासिफाइड 70% और 10%। अब इसमें पैसे कितने खर्च होने हैं? इसमें कितने खर्च होने हैं? मुझे 30% बजट मिलता है, लेट से 90% पे चला गया मैंने क्यों कहा था कि आपने रोना है? फिर इसके बगैर क्या करोगे? तो जब आप मुझे प्रायोरिटी नहीं बनाने देते, अगर मेरे लिए बेंचमार्क किया कि मेरा स्टोर कितना बड़ा भरा हुआ तो मैं बी और सी को भर देता हूँ। मैं 40% से 90% पे आ गया, मेरे कंधे पे 2 सितारे लग गए कि मैंने बड़ा कमाल कर दिया है, लेकिन ओवरऑल वो बेनिफिशियल है कि नुकसानदेह है, ठीक है। इसलिए बजट कंस्ट्रेंट फर्स्ट, और सेकंड ये है कि प्रायोरिटी आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। आपने उसका इंडिकेटर क्या रखा है? अगर उसका इंडिकेटर ये है कि स्टोर कितना भरा हुआ है तो फिर मैं तो यही करूंगा। अगर आप कहते हो कि ऑप्टिमाइज्ड मिक्स करना है और उसको मैं डिफाइन करूंगा तो फिर मेरे से सवाल क्यों है? फिर इसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए कि क्यों खाली पड़ा हुआ स्टोर, ठीक है। लेकिन सर बजट लेना वो तो स्टोर के उस पे है कि वो, चले मान ली बात, चले वो भी मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फेलियर है, मैं बजट नहीं ले पाया, लेकिन मैं 90% तक तो फिर भी जा सकता हूँ, चला जाऊं
फिर मैं फिर आपका ख्याल नहीं ना करूंगा, फिर तो मुझे सिर्फ अपने इंडिकेटर्स को बेस्ट रखना है। व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा नहीं होता। मैंने सिर्फ अपनी बेहतरी नहीं देखनी, मैंने अपने बेंचमार्क्स या अपने स्टैंडर्ड्स नहीं देखने हैं, मैंने ओवरऑल रेलवेज की बेटरमेंट देखनी है, जिसके लिए मैं बुरा बना हुआ हूं कि चले मुझे बुरा कह लें आप, लेकिन काम चले, अच्छे तरीके से चले, वरना मैं इसको टोटली जीरो कर देता हूँ। 90% इन स्टॉक है, 10% सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक है। बाकी इदारों की कारकर्दगी पूछे कितनी है, 90% किसी की भी नहीं होगी। मैं 90% आपको करके दिखाता हूँ वर्किंग अप, ठीक है। आपके अगला इशू क्या आता है, गाड़ी नहीं निकलेगी, गाड़ी नहीं निकलेगी, कॉम्प्रोमाइज कर लें, टेंडर कंडीशन रिवाइज कर लें, सप्लाई पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, नहीं करूंगा तो क्या होगा, बाकी गाड़ी नहीं निकलेगी। कंट्रोलर प्री ऑडिट, हमारा काम एक किस्म का प्री ऑडिटर का भी है, रेकलेस परचेजेस को रोकना भी है, कंज्यूमर्स को कंट्रोल करना भी है, वेदर इट्स डिमांड। लेकिन मैं अक्सर कहता होता हूँ कि वी हैव नॉट assumed the charge of controller yet। अगर हम assume कर लेंगे तो रोना शुरू हो जाएंगे सब, क्योंकि जिस वक्त मैं टेंडर को फाइल कर दूंगा ना कि ये आपकी स्पेसिफिकेशन गलत है, फाइल्ड, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है, फाइल्ड, मेरे नजदीक ये कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं है, फाइल्ड। अब तो आके मैकेनिकल वाले यहाँ तक लिखना शुरू हो गए हैं, जब से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, लोको स्पेस पे ही मैं पीसीपी 5, ठीक है। वो अब ये भी लिख देते हैं कि अगर ये पुर्जा ना लिया गया तो हमारा इंजन नहीं निकलेगा, जिसकी वजह से बिजनेस लॉस होगा। अब मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं फिर खामोश हो जाता हूँ, वरना मैं उसकी भी जस्टिफिकेशन मांग सकता हूँ कि आप किस तरह से कह रहे हैं, आपने प्रीएम्प्टिवली स्टार्ट क्यों नहीं किया इतना पहले, इसका ऑल्टरनेट क्यों नहीं है। My latest proposal is a project with the name of vendor selection and development। इस पे मैंने भी तैयार करना है, PC1 बनाना चाह रहा हूँ मैं इस पे, अगर मुझे वक्त मिल गया, जो कि बहुत कम मिलता मुझे। वेंडर सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंडिजिनस प्रोडक्शन पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स की ट्रायल शीट्स में क्या हो रहा है, आप मुझे आज होंडा कार दे दो या कोई भी गाड़ी दे दो, ठीक है, वारंटी में होगी, मर्सिडीज हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, ठीक है, उसके मैं पैडल पे पाँव रख के 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम, क्या होगा, इंजन ब्लोन, ट्रायल शीट फेल्ड, मटेरियल फेल्ड, फेल कर दो मर्सिडीज को। आपके तो बड़े अजीम लोग हैं, जनरल इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट फेल कर देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की। जापानीज बेरिंग थे, उनको फेल कर दिया, मैंने कहा जापानीज बेरिंग को आप फेल कर रहे हो, कहता जी हमारी इन्वायरमेंट में नहीं चले, हमारे पास ट्रायल शीट है, रिकॉर्ड है। स्वीडन का डबल टाइम पे चलता है। अब अगर मैं इसको एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर लूँ, एज अ कंट्रोलर लूँ, तो मैं इसको ऐसे क्यों ना लूँ कि इट्स अ फेवर टू अ स्पेसिफिक सप्लायर, डेलिबरेटली किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कंपटीशन को, क्यों ना लूँ ऐसे जी। ओनली अप्रूव्ड वेंडर्स विल बी अलाउड, और अप्रूव कौन कर रहा है, फोरमैन साहब, ट्रायल शीट खोल के। कंट्रोलर जस्टिफिकेशन मांग सकता हूँ, नहीं मांगूंगा, मांगूंगा तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन नहीं, उससे पहले होना धोना शुरू हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है, इसको हटाओ पहले, ठीक है।
सर ये हमने सुना है कि फिंगर्स नहीं पॉइंट कर रहा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बाईपास होती है जस्ट बिकॉज के इन द नेम ऑफ ग्रेटर गुड, कौम के वसीतर मुफाद में। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कौम के वसीतर मुफाद में फिर एंड पे क्या होता है? वो खुद को कौम समझ के कौम के वसीतर मुफाद में प्रॉब्लम ये है कि मैं एग्री करता हूँ कौम के वसीतर मुफाद में, लेकिन देयर इज अ थिन लाइन, यू कैन नॉट बाइफरकेट के कहाँ पे अपना मुफाद और कहाँ पे कौम का वसीतर देखना चाहिए। आपको बाईपास करना पड़ता है, ग्रे एरियाज है, एग्रेड, लेकिन डिटरमिन नहीं किया जा सकता कहाँ पे मैं बैरियर लगा सकता हूँ, या मेरे पास आपकी इंटेंशन जज करने का कोई तरीका नहीं है कि आप ये अपने जाती मुफाद के लिए कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इस चीज को डिफाइन किया जाए, दैट इज द इशू। चलें जी, आ जाएं। Uncertainty in and variability that are hard to control in services. सर्विसेज में क्या इशू आता है? टास्क टाइम फर्क होगा, कुछ में कम होता है, कुछ में। मैंने एक टेस्ट लिया था, उसमें मैंने एक बच्चे को फेल कर दिया था, पास कर दिया था, उस पर एतराज होगा, यूनियन आ गई, उन्होंने कहा कि जी आपने, एक बंदे ने 2 घंटे में कुर्सी बनाई है, एक ने 4 में बनाई है, आपने उसको भी पास कर दिया, आपने उसको भी पास कर दिया। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक किया। क्राइटेरिया वाज पास एंड फेल, बना सकता है या नहीं बना सकता। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ स्लो तो होगा ना। एक बंदा 25 साल का और एक 55 का है, अब 55 वाला सीनियर भी है सीनियरिटी में, तो प्रमोशन पे उसका राइट बनता है। अब यूनियन फेवर कर रही है अगर 25 एज वाले को और वो क्विक भी है, तो दैट डजंट मीन कि उससे काम नहीं आता। इस बात पे बकायदा चीफ मिनिस्टर के पास से मुझे एक लेटर आया जिसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, वहाँ से लेटर आया। उसके बाद CCS की तरफ से आया, उनका जब हमने इंक्वायरी करवानी है, तो वो है मोस्ट वेलकम। आप अपनी सिलेक्शन जो है वो रिवाइज कर लेना, आप इंक्वायरी करवाएं, इसको जरूर करवाएं। आई स्टैंड बाय माई डिसीजन, ठीक है। तो ये चीज है कि अगर आपके पास रैशनल है तो आपको उस पर स्टैंड लेना चाहिए। फिर चेयरमैन के पास गया, कहाँ पे नहीं गए, लेकिन वो डिसीजन अपहेल्ड हो रहा टोटली एंड तक। क्यों? द क्राइटेरिया वाज पास एंड फेल। या तो आप मेरिट लिस्ट बनाएं, डिफाइन करेंगे, मेरिट पे डिफाइन होगा, टॉप वाला प्रमोट होगा। भाई बंदा सीनियरिटी में ऊपर है और पास दोनों बंदों ने कर लिया, दोनों फुलफिल कर रहे हैं, तो जो सीनियर है वही प्रमोट होगा ना। या आप मार्किंग जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप थी, मैंने TCO बताया था, या तो आप उसका क्राइटेरिया फैक्टर्स रखें, जैसे आपके लेटर ऑन होता है, बोर्ड में होता है कि इतने मार्क्स इसके, इतने इसके होंगे, या तो वो क्राइटेरिया हो। तो डिमांड अनसर्टेनिटी होती है, देन कस्टमर प्रोडक्शन रोल्स सर्टेन नहीं होते। फ्यू सप्लायर्स का मसला क्या आता है? बायर्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद फ्यूअर सप्लायर्स। OEM है सबसे ज्यादा मैकेनिकल में जी, OEM है जी, हमें तो चाहिए ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का। और इसके कॉन्ट्ररी भी खुद ही कह रहे होते हैं, ये प्रोडक्ट है, ये हमने लोकली डेवलप करवा ली है, जी से लेंगे तो इतनी महंगी मिलेगी, यहाँ से ले रहे हैं तो इतनी सस्ती मिल रही है, ये ले लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे ये स्टोरी है, कुछ पे वो स्टोरी है। ये तो सर उधर वैलिड करते हैं जब अगर वो वारंटी में हो और OEM कहता है कि आप इस प्रोडक्ट के अलावा अगर कोई और इस्तेमाल करते हैं। नहीं, उसके अलावा भी कैसे हैं आपके लोग, बता रहा हूँ आपको। मैं डीजल स्पेयर से डील करता हूँ, मैं डायरेक्टली डील करता हूँ, इसलिए मुझे पता लोकोमोटिव स्पेयर से कि नहीं जी हमें यही प्रोडक्ट चाहिए। और कुछ प्रोडक्ट्स में कहते हैं कि नहीं, लोकल प्रोडक्ट्स से चल जाएगा काम। अगेन उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इंटेंजिबल है, इसलिए हमने भी उसको ओपन छोड़ा हुआ कि ठीक है जो कंज्यूमर डिफाइन कर रहा है। जैसे इन्होंने कहा था कि जी आप क्यों नहीं, आप भी तो इंजीनियर हैं, मैं अगर डिफाइन करूंगा तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पर डिफाइन करूंगा ना। देन क्रिएट वैल्यू थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लर्निंग कर्व इम्प्रूवमेंट। इकोनॉमी ऑफ स्केल के एक ऑप्टिमल लेवल होता है जिस पे आप ऑर्डर करते हैं या बाइंग करते हैं। Then suppliers more willing to participate in just-in-time programs and contribute design and technological expertise.
इसमें क्या होता है कि वो कोई इम्प्रूवमेंट लेके आता है और आपको अपनी प्रोडक्ट दे देता है ट्रायल पे। देन जस्ट इन टाइम है इसके ये मॉडल में वैसे जस्ट इन टाइम पे शिफ्ट इस तरह से हो जाता है कि आप वेंडर से इन्वेंट्री मैनेज करवा रहे हैं। अब इन्वेंट्री मैनेज हो रही है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री नहीं मैनेज हो रही। वो कहाँ पे हो रही है? वेंडर के पार्ट पे हो रही है, और वो उसके मैनेजमेंट के भी पैसे उस प्रोडक्ट की प्राइस में डाल देता है। आप कहते हैं नहीं मुझे खुद मैनेज ना करनी पड़े, वेयर हाउसिंग ना करनी पड़े, स्टोरेज ना करनी पड़े, जिस वक्त रिक्वायर्ड हो मिल जाए, तो उसकी वो कॉस्ट लेगा ना आपसे, फ्री में तो नहीं करके देगा, उसने आपके लिए डेवलप करके रखनी है प्रोडक्ट। देन कॉस्ट ऑफ चेंजिंग सप्लायर्स इज ह्यूज। टोयोटा क्या करता है? दुनिया का बेहतरीन इस वक्त जो सिस्टम है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, TPS, तो आप पढ़े तो जबरदस्त किस्म की उसकी जो फिलोसफीज हैं, टेक्निक्स हैं। अब वो कहते हैं कि 4 to 7 सप्लायर्स होने चाहिए, ना इसे ज्यादा रखते हैं ना इसे कम रखते हैं, और इनको चेंज करते हैं। अगर एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है या उनके बेंचमार्क से नीचे जाना शुरू हो जाता है तो पहले वो उसको इम्प्रूव करवाते हैं, नहीं करता तो एलिमिनेट हो जाएगा सिस्टम से, नया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इससे कम पे कंपटीशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा पे जाएंगे तो फिर वही कंप्लेंट्स, इनकम्पैटिबिलिटी इश्यूज और डिफरेंट इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स एंड अदर अलायंसेस मे बी एट रिस्क। सिक्योरिटी एंड जिट, ये भी इश्यूज आते हैं इसके। इस वक्त हम स्लैग्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसलिए ये सारी प्रॉब्लमेटिक बातें हो रही हैं आज। तो सिक्योरिटी एंड जस्ट इन टाइम शिपमेंट गलत किसी जगह पे चली गई है, चोरी हो गई, डैमेज हो गई या एक्सेसिवली डिलेड। देन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आर इम्प्रूविंग, डे बाय डे चीजें चेंज होती हैं, इम्प्रूव हो रही होती हैं। लोकेशन, मोशन सेंसर्स, ब्रोकन सील्स, टेम्परेचर्स, रेडियो एक्टिविटी, ये चीजें मैटर करती हैं। मेडिसिन में खास तौर पे टेम्परेचर कंट्रोल, कोल्ड स्टोरेज बहुत मैटर करता है, मेडिसिन भी हम लेते हैं वैसे। ट्रैकिंग कैन हेल्प एक्सपीडाइट शिपमेंट्स, ट्रैकिंग करते हैं आप शिपमेंट्स को। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इंपैक्ट किस तरह से करती है सप्लाई चेन को? 3 स्ट्रेटजीज हैं, लो कॉस्ट, रिस्पॉन्सिव एंड डिफरेंशिएशन। ये अब मैं डिफाइन करूंगा या आप डिफाइन करोगे? कंज्यूमर करेगा इसको डिफाइन या मैं करूंगा? नहीं, सेलर तो नहीं करेगा, या स्टोर परचेज करेगा या कंज्यूमर करेगा, कौन करेगा? स्टोर करेगा। मैं कहता हूँ लो कॉस्ट, आप कहोगे रिस्पॉन्सिव। मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिव, आप कहोगे डिफरेंशिएशन। कम कीमत की चीज लेनी है, अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, या डिफरेंशिएशन चाहिए? कंज्यूमर ही करेगा। कंज्यूमर करेगा ना। अब कंज्यूमर को पता ही नहीं इस बात का, तो वो करेगा कैसे? क्योंकि उसको किसी ने बताया ही नहीं है आज तक। इसलिए ये कोर्स जरूरी है, इसलिए ये चीजें जरूरी हैं कि आप लोगों को ये पता होगा कि स्ट्रेटजी मेरे पास अवेलेबल कौन कौन सी हैं, टूल्स कौन से हैं, तब आप अप्लाई करोगे ना। या पता ही नहीं होगा तो करेंगे कैसे अप्लाई? ठीक है। तो प्राइमरी सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका, इसमें कॉस्ट होता है, इसमें कैपेसिटी, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस। देन डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्किल सेट कितना अच्छा है उसका, डिफरेंशिएट कर रहा है वो किस बेस पे कर रहा है, विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। ये रिस्पॉन्सिव है लेकिन वो कहता है आपको मैंने बताना कुछ नहीं है, यहाँ पे वो आपसे फुली कोलैबोरेट कर रहा है हर चीज में। तो कुछ प्रोडक्ट्स में हो सकता है आप रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चाहते हो, कुछ में आप लो कॉस्ट चाहते हो, कुछ में आप डिफरेंशिएशन चाहते हो। पैरामीटर्स होंगे प्राइमरी सप्लायर सिलेक्शन क्राइटेरिया, देन सप्लाई चेन इन्वेंट्री, इसमें मिनिमाइज इन्वेंट्री टू होल्ड डाउन कॉस्ट,
क्यों? रेडिली अवेलेबल है, लो कॉस्ट है, आम मिलती हैं चीजें। बफर स्टॉक्स यूज करते हैं एंड मिनिमम इन्वेंट्री टू अवॉइड प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, क्योंकि रैपिड शिफ्टिंग है, टेक्नोलॉजी चेंज है। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स डिफरेंट डिफाइन किए हैं और प्रोडक्ट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हुए हैं। अच्छा, ये मैंने ना आपके थोड़ा सा ये नोट्स भी हैं एक किस्म के, यू कैन यूज देम एज नोट्स एज वेल। आपको अगर हम कुछ बीच में से रह भी जाए ना चीजें, तो आप डिस्कस करके इनको देख के आपको पहले मिल जाते हैं ना लेक्चर नोट्स। तो आज या 4 दिन तो मैं इधर ही हूँ, उसके बाद भी आप मुझे हेडक्वार्टर्स में भी मिलके कुछ अगर आपको ना समझ आए तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मटेरियल मैंने ज़्यादा रखा था इसलिए कि बेस लाइन कॉन्सेप्ट कम से कम सारे कन्वे हों, पता हो। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने ये चीज़ें पहले कभी देखी हों, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि कम से कम आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, कौन से टूल्स इन्वॉल्व हैं, क्या रोल्स हैं आपके और क्या हमारे रोल्स हैं, और उसको हमारा रोल भी अगर आपको पता होगा तो आप बेहतर आके उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इन द फील्ड। सो वेस्ट, जापानीज टर्म इज मुदा, रिडक्शन, वेस्ट रिडक्शन। फर्म रिड्यूसेस कॉस्ट एंड ऐड वैल्यू बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट। 7 किस्म के वेस्ट हैं, ये भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से लिया हुआ। दिस इज फ्रॉम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। कहाँ पे 7 वेस्ट हैं आपके? ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेटिंग, अब एक्सेस वेटिंग टाइम, जैसे हमने एक एग्जांपल दी थी सप्लाई चेन डिसरप्शन की। सेकंड विल बी वेटिंग के मटेरियल आने में, आप वर्कर खड़ा हुआ और पीछे से सप्लाई नहीं आई, स्टोर से लेके वहां तक नहीं पहुंची। वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ वेटिंग टाइम, एक्सेस आइडल मशीन एंड ऑपरेटर एंड इन्वेंट्री वेट टाइम। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेस मूवमेंट। एक्सेस मूवमेंट क्या होगी? इसको थोड़ा सा चेयर को अगर मैं यहाँ रख दूंगा, एवरी टाइम आई हैव टू गो अराउंड इट, एक्सेस मूवमेंट है। इसी तरह से ये चेयर्स को अगर साथ जोड़ दें इकट्ठा सारों को, तो अब एवरी टाइम पर्सन हैज टू गो थ्रू द होल रो, सेंटर से किसी ने उठ के जाना है इस तरह से, तो इसलिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस मूवमेंट भी इसमें वेस्टेज में आती है। देन ओवर प्रोसेसिंग, नॉन वैल्यू एडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर एक्टिविटीज। ओवर प्रोसेसिंग क्यों होती है? अभी जो हमने बात की थी, मिसयूज। पाकिस्तान में इशू क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा रेलवेज में खास तौर पे ओवर प्रोसेसिंग। और रीजन क्या होता है कि जहां पे कोई गड़बड़ आती है ना, इन ऑर्डर टू, वो ऑडिट वाले बोलते हैं स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल्स। तो स्ट्रेंथन द इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या लिया जाता है कि अगर एक फोरमैन गलती करता है तो हम कहते हैं कि अगली दफा वो काम असिस्टेंट ऑफिसर चेक करेगा। फिर उसमें खराबी आती है तो ये नहीं कहते कि ये इंडिविजुअल में प्रॉब्लम आई है। नाउ दिस विल बी सुपर चेक्ड बाय डिविजनल ऑफिसर। फिर डिसरप्शन आई, नाउ इट विल बी चेक्ड बाय अ डिप्टी चीफ ऑफिसर। भाई आप एक रेपुटेशन इंक्रीज कर रहे हो, इटरेशंस इंक्रीज कर रहे हो विदाउट नोइंग द रीजन कि वो क्यों आई है। ये वेस्ट रिडक्शन नहीं है, ओवर प्रोसेसिंग के जरिए आप वेस्ट इंक्रीज कर रहे हो सिस्टम में। लेकिन रीजंस होते हैं उसके, अगेन रीजंस क्या होते हैं कि वो आइडियल कंडीशन में हम काम नहीं कर रहे होते। देन एक्सेस इन्वेंट्री, जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखी हुई है। एक्सेस मूवमेंट, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, बिला वजह ही लोग फिर रहे हैं। अब एक बंदा काम कर रहा है, उसके पास 2 आ गए हैं, यार मैं जरा फारिग हुआ था तो मैंने कहा चक्कर लगा दिया। अब वो उसको भी नहीं काम करने दे रहे जो वो कर रहा है। स्क्रैप एंड रीवर्क। सो मैनेजिंग द इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन इश्यूज आते हैं आपके। लोकल ऑप्टिमाइजेशन कैन मैग्नीफाई फ्लक्चुएशंस, इंसेंटिव्स पुश merchandise into the supply chain for sales, and large lots reduce shipping and production costs. लेकिन इसके साथ साथ इंक्रीज आ जाता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट का। किसमें?
इश्यूज बता रहा हूं मैं। लोकल ऑप्टिमाइजेशन कैन मैग्नीफाई फ्लक्चुएशंस। लोकली अगर आप इसको करते हैं, ज़्यादा लोकल फर्म्स पर रिलाई करना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वेंडर्स ज़्यादा होंगे तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगी, प्रोडक्ट डिफरेंट। आप 10 वेंडर से एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई किसी तरह से बना रहा होगा, कोई किसी तरह से, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। ठीक है। इंसेंटिव्स पुश मर्चेंडाइज इनटू द सप्लाई चेन फॉर सेल्स दैट हैव नॉट अकर्ड। जो मैंने आपको सेल्स की एग्जांपल दी थी कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो इंसेंटिव्स देने की वजह से लोगों ने ओवर प्रोडक्शन या ओवर बाइंग करना शुरू हो जाते हैं। अभी इनको भी मैंने एक एग्जांपल दी थी, वो भी इंसेंटिव्स वाली बात थी। आप मुझे कहेंगे स्टोर को आप अगर 80% पे ले जाएंगे तो आपको 6 तनख्वाहें बोनस देंगे। और जनाब 90 पे ले जाते हैं, ले जाएं क्या? नहीं, इंसेंटिव है ना। मेरा तो इंसेंटिव यही है कि स्टोर भराओ, भर दिया, ट्रेन चले ना चले मुझे क्या। ऐसा नहीं होता। लार्ज लॉट्स रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट, लॉट बड़ी कर देंगे, शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, प्रोडक्शन भी, क्योंकि बैच प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री ज़्यादा देर रखनी पड़ेगी, पैसा उसमें आपका जैम होगा। तो इसमें अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि आप समटाइम्स प्रेफर करते हैं, समटाइम्स नहीं करते, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं चीज़ें। So bullwhip effect occurs when orders are relayed through the supply chain with fluctuations increasing at each step. अब each step क्या है? इसमें bullwhip effect तो आपको मैंने पहले बता दिया था। इसमें फर्दर एक और चीज ऐड करूं कि होता क्या है कि आपके फोरमैन ने कहा कि सर आइटमें मिलती हैं थोड़ी, तो 10 की बजाय 50 मांग लेते हैं। उसने मांगी 50। अब जो असिस्टेंट ऑफिसर बैठा है कहता यार बाकी थोड़ी मिलती हैं, तो फोरमैन ने तो पूरी मांगी होंगी, बात नहीं हुई आपस में, कहता यार 100 मांग लो। फिर डिविजनल ऑफिसर, फिर डिप्टी, फिर चीफ तक जाते जाते और हर बंदे से जाते जाते जब पूरे पाकिस्तान की जाएगी तो वो कितनी को एम्पलीफाई होगी, डिमांड आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड डिमांड होगी। सर जब उस चीज की कोई डिमांड होती नहीं तो वो ज्यादा क्यों मांगते हैं? बाकी नहीं मिलती नहीं, तो जब डिमांड ही नहीं है फिर से जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये है कि आप अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं 100 रुपए का, ठीक है, आप डेली 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। अब पाकिस्तान में फ्यूल जो आ रहा है पंप्स पे वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहा है, डिमांड सप्लाई को देखते हुए। आज मैं अखबार में खबर दे देता हूँ कि कल से पेट्रोल की हड़ताल है, क्या होगा? क्या होगा? आप कितना डलवाओगे? आप कहोगे टैंकी फुल करवाता हूँ। अब हर बंदा, कुछ लोग टैंकी भी फुल करवाते होंगे, अब कोई 100 का डलवाता है, कोई 200 का, कोई टैंकी फिल करवाता है। अब जब आज कल 2-3 दिन में सारी दुनिया टैंकी फिल करवाने पहुंच जाएगी तो वाकई शॉर्टेज आ जाएगी। सर लेकिन वहाँ पे एक डर का है ना, वो डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्यों बढ़ जाती है कि आपने देखा होगा कि जब कहीं पे कहत पड़ा होता है या जब जल्जला आया था तो वो जो आटे वाला ट्रक था उस पर लोग झपटते हैं। क्या उन्हें उस वक्त की रोटी नहीं मिल रही होती? उस वक्त की मिल भी रही हो, वो एक और थैला लेने जाएगा, वो मिल जाएगा, एक और लेना जाएगा। एक आपको मिसट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं स्टोर कर लूं, रख लूं चीज लेके, जाया हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ना होने वाली बात ना हो, पड़ी हो। लेकिन फैक्टर है ना कि उस वक्त डिमांड बढ़ी हुई है तभी तो ले रहे हैं। मैं कहता हूँ नॉर्मल हालत में अगेन फिर मैं बता रहा हूँ आपको, डिमांड नहीं बढ़ी, मिसट्रस्ट है। मिसट्रस्ट है कि मुझे पता नहीं मिले कि ना, पहले मुझे 6 महीने बाद मटेरियल मिला, अब हो सकता है 1 साल बाद मिले तो मैं इकट्ठा करके रख लूं। सर यूरोप में कोरोना में इसके लिए बकायदा हमारे स्टोर इंस्पेक्टर्स थे, जी टीम होती थी, एक जी टीम भी होती थी, स्टोर इंस्पेक्टर थे, वो बकायदा जाके तलाशियां लेते थे स्टोर की, उस पर फिर चार्जशीट इशू होती थी कि आपने ओवर स्टॉकिंग क्यों की हुई है। अभी मैं फोरकास्टिंग में आपको पढ़ाऊंगा कि हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम एवेल्युएट करते हैं क्या है, और बड़ा रिफाइंड सिस्टम है, उसको फर्दर इंप्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन रिफाइंड सिस्टम है, अभी भी इंटैक्ट है।
डिमांड फोरकास्टिंग का, ठीक है। अभी एक मुझे फोन आया, मैं स्टोर्स में था, डीसीडी था, तो मुझे एक फोन आया कि जनाब मुझे 8000 डेटोनेटर्स चाहिए, पटाखे ना डेटोनेटर्स। अच्छा, वो सर मैंने 2 इधर देने हैं, 2 उधर देने, FGIR आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा अपने चीफ इंजीनियर से आप सैंक्शन ले लो। सर वो तो नहीं देंगे। मैंने कहा फिर मैं आपको कैसे दे दूं, आप मेरे से पूरे पाकिस्तान की डिमांड से ज्यादा आप खुद मांग रहे हो, एक बंदा मांग रहा है, मैं कैसे दे दूं आपको? मेरे पास भी कोई जस्टिफिकेशन हो ना, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंडोर्स कर दे। सर वो तो नहीं करेंगे। सर आप कुछ कर दें, मैं क्या कर दूं उसमें, मैं क्या कर दूं? अच्छा, मैंने उसके लिए ये किया, बंदे के लिए स्पेशली, कि मैंने अपनी तरफ से केस भिजवा दिया उसके चीफ इंजीनियर को। पहले मुझे CCS ने बुलाया, चीफ कंट्रोलर ने, कि तुम्हें क्या जरूरत है। मैंने कहा सर उसकी डिमांड आई है, वो नहीं कह सकता अपने चीफ को, तो वहां भेज देते हैं। उनको कन्विंस किया, चीफ इंजीनियर से जवाबी लेटर आता है कि नो, द डिमांड इज एनफ। वहां पे स्टोर क्या करेगा फिर, क्या करें फिर? डिमांड हर बंदा, मैंने खुद लोगों से बकायदा इस पे मैंने खुद रिसर्च की है। किस तरह से किया है? सर मुझे 50 बुक्स चाहिए गेट पास की। सर 30 तो ऑफिस है, यूं होता है वो होता है। मैंने कहा यार अगर तुम 50 ना मांगो मेरे से, जायज बात करो, मैं तुम्हें मंथली जितनी रिक्वायर्ड है ना, 5 बुक्स पे आ गया, 50 से 5 पे आ गया। मैंने कहा मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि तुम्हारी सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगी, तुम्हें जो रिक्वायर्ड है वो मिलेंगी, रेगुलर मिलती रहेंगी। अब मैंने एक साइकिल बनाना है। प्रिंटिंग प्रेस में 2400 आइटम्स प्रिंट होती हैं। अगर हर बंदा यूं मेरे से 5 की जगह 50-50 मांगेगा तो पूरी शॉर्टेज आ जाएगी, हर चीज पे शॉर्टेज आ जाएगी। आप जिम्मेदार स्टोर को करार देंगे, वो आपकी इरेशनल डिमांड्स हैं, बुलविप इफेक्ट है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया, मिसट्रस्ट है सिस्टम पे। तो पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तो सर वो सिस्टम बनाया हुआ है ना कि स्टाफ वालों को पता होता है कि इसके थ्रू कितना उनके पास पड़ा हुआ है लेडीज का। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास, मैं आपकी बकायदा डिमांड भी हमारे पास, मंथली डिमांड्स डिफाइंड है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स बनते होते थे पहले। सो मैनेजिंग द इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्यूरेट फुल डाटा। फुल डाटा क्या है कि आपकी एक्चुअल जहाँ पे रिप्लेनिशमेंट गैप आता है उतना आपको मिल जाए। ये चौक है, खत्म हो गया, नया यहाँ पे पड़ा हो, हद ज्यादा से ज्यादा एक और पड़ा हो, वो खत्म होने से पहले मुझे गैप का पता हो किस टाइम पे क्रिएट होना है। फुल मीन्स के इंस्टेड ऑफ पुशिंग क्या होता है कि आपने इन्वेंट्री रखी है और आप पुश कर रहे हैं, आप दे ही जा रहे हैं लोगों को, नहीं, आपके पास रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई, आप मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन वो डाटा शुड बी एक्यूरेट, फुल डाटा। आपके पास जो गैप है उसको आपने फिल करना है, पुल करके मटेरियल लेना है, पुल करना है, ठीक है, वो दैट शुड बी, द डाटा शुड बी एक्यूरेट। देन लॉट साइज रिडक्शन, शिपिंग डिस्काउंट्स रिड्यूस्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट, लॉट साइज रिड्यूस कर दें, बैच साइज छोटे कर दें, सिंगल स्टेज कंट्रोल ऑफ रिप्लेनिशमेंट, एक ही जगह पे आप उसको डिसीजन लें, एंड वेंडर मैनेज्ड इन्वेंट्री, पहले बताया अभी, या आपके बिहाफ पे वेंडर ही इन्वेंट्री मैनेज करता है। सो सम मेजर इंटरनेशनल डिसरप्शंस, दुनिया की कोई मेजर डिसरप्शंस देखते हैं, आपको पता लगे कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है या रेलवे अकेली नहीं है, दुनिया में भी बहुत कुछ होता है। Entire Japanese vehicle industry grounded to a halt following an earthquake that stopped production of piston rings for engines provided by Raycon, the industry leader in the domestic market. पूरी इंडस्ट्री डूब गई, एक कंपनी नहीं, सारी की सारी इंडस्ट्री। Toyota in particular was forced to stop operations at all 12 of its domestic plants. Fire at key Philips semiconductor factory in 2000 caused a worldwide shortage of the RF chips used by both Nike and Nokia and Ericsson. और क्या हुआ था, उन्होंने इमीडिएटली, नोकिया ने अनदर सोर्स को कर लिया था इंगेज,
जबकि एरिक्सन ने स्लो किया और रिजल्ट क्या हुआ, $400 मिलियन लॉस। पाकिस्तान रेलवे कितना कमाती है, 50 अरब। मिलियन डॉलर्स में बात करें तो $250 बिलियन, 300-350 मिलियन डॉलर बनता एनुअल। तो आपके एनुअल लॉस से ज्यादा लॉस कंपनी ने, आपकी एनुअल अर्निंग से ज्यादा लॉस कंपनी ने कर दिया। तो दीज थिंग्स हैपन। सम अदर फैक्टर्स, फ्रेंच ट्रेन ऑपरेटर SNCF had discovered that 2,000 new trains it ordered at a cost of 15 billion euros are too wide for many regional platforms. 2014 DPU याद है सबको, वहां पे तो किसी ने नहीं कहा कि ये 15 बिलियन यूरो का लॉस कर दिया आपने और इंजन का साइज ही ठीक नहीं नापा गया। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, 15 बिलियन यूरो डील। सर ये करनी किसने थी, चीफ मैकेनिकल ये फ्रांस के, अब ये नहीं मुझे पता वहां पे किसने की है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि फेलियर्स, सप्लाई चेन फेलियर्स की बात हो रही है कि फेलियर्स में कितना को यानी कि इम्पैक्ट दुनिया में आता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, वर्ल्ड ओवर ये इश्यूज आते हैं। F-22 $1.5 ट्रिलियन फेल प्रोजेक्ट। ये पाकिस्तान में जो इंजन का होता है वो किसने सर्टिफिकेट दिया, किस चीज का, DPU का, वो मैंने नहीं देखा अभी तक केस, उसको नहीं मैंने देखा। F-22 $1.5 ट्रिलियन फेलियर प्रोजेक्ट। मित्सुबिशी फ्यूल इकोनॉमी स्कैंडल, इन्होंने क्या किया था, टायर को हाइपर इन्फ्लेट किया, आर्टिफिशियल कंडीशंस में चलाया और डिफाइन किया कि जनाब हमारी गाड़ी 1 लीटर में इतना करती है। बाद में पता लगा कि ये तो गलत है, सारा झूठ है। रिजल्ट, मित्सुबिशी का जो CEO था उसने रिजाइन किया, पब्लिकली माफी मांगी, उसके बाद उनका ठीक ठाक इसमें डैमेज हुआ था कंपनी को, 1 लीटर में 70 किलोमीटर। F-22 प्लेन है, इट्स अ फेल्ड प्रोजेक्ट, $1.5 ट्रिलियन फेल्ड प्रोजेक्ट। इसमें डिजाइन इश्यूज हैं। एवर गिवन टू 2021 Suez Canal blockage जो हुई थी। Then Toyota, the world's largest automaker, supply chain disruption reduced operating profits by $276 million in 2016। बर्दाश्त कर लेंगे तो जस्ट इन टाइम पे चले जाएं, टोयोटा को फॉलो कर लें। अगर 10 दिन ट्रेनें बंद रख सकते हैं, 20 दिन 30 दिन तो कोई मसला नहीं, इन्वेंट्रीज को एलिमिनेट कर लें। CPEC, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके टाइमलाइन से डिले हो रहे हैं, कॉस्ट एस्केलेट हो रही है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइसेस डबल से ज्यादा चली गई। नंदीपुर, लैंकर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वाकया है ये। पाकिस्तान में लैंकर्ट का, टेलीकॉम का कोई नहीं है बंदा यहाँ पे। लैंकर्ट USA की कंपनी थी, लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रोवेव सिस्टम्स थे यहाँ पे लगाया, और लगाने के बाद इन्होंने इसको चलाना था। एक रात पता लगा कि ये इतने एडवांस थी उस दौर में कि पाकटेल ने रेलवे से चैनल लिए थे लीज पे। पाकटेल का मोबाइल नेटवर्क था, वो रेलवे की कम्युनिकेशन पे चलता था। तो लैंकर्ट एक दिन रातों रात भाग गई। मुफ्त सिस्टम लगाने आए, लगा रहे थे, एक दिन रातों रात भाग गए। फिर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया डाइवो ने, कोरियन कंपनी ने। अब वो क्यों भागे? वो पता लगा कि द बेसिक एम बिहाइंड दिस सिस्टम वाज दे वांट टू स्पाई ऑन कहूटा। ये सारा सिस्टम उसके लिए लग रहा था, और जैसे ही पता लगा उससे पहले वो निकल गए। एज अ रिजल्ट फिर इस प्रोजेक्ट को आगे डाइवो ने किया। इसलिए जब फ्री होता है तो if it's free then it's a famous quote, another famous quote, if it's free then you are the product.
इस पे भी अब ऐसे पेपरा ने इसको डिफाइन कर दिया अनसॉलिसिटेड प्रपोजल के नाम से कि उसका क्या तरीकाकार होगा। चलें बस एक दफ़ा ये मैं गो थ्रू कर देता हूँ। जीएम ने हॉल्ट किया था अपनी स्ट्राइक्स की वजह से, इसी तरह से क्राइसलर के 4 प्लांट्स शट डाउन हुए थे और बैक्स्टर पुल्स रिमेनिंग हेपरिन फ्रॉम द मार्केट। ये मेडिसिन की डिस्क्रप्शन है। ये और कुछ डिस्क्रप्शन है आपकी टॉप सप्लाई चेन डिस्क्रप्शंस यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जिसमें एप्पल से लेके जीएम और इस किस्म की कंपनीज भी हैं। तो इसलिए हम तो वैसे ही बहुत पाकिस्तान रेलवेज में अगर स्टोर परचेज की बात करें तो ये देख लें कि कैसी कैसी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, तो हम तो बड़े मासूम से लोग हैं इनके मुकाबले में। ये आपका फ्लोज ही बताए हुए हैं, लोकेशन जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर डिस्क्रप्शंस आ सकती हैं। ये उन्हीं डिस्क्रप्शंस को डिमांड साइड पे, सप्लाई पे, प्रोसेस पे, नेटवर्क पे और एनवायरनमेंट पे डिस्क्रप्शंस होती हैं मेजर। चैलेंज क्या होता है, उस क्वाड्रेंट से इसको यहाँ पे लेके आना, दैट्स इट। सिर्फ एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। तो इसमें डिस्कस करना हो तो हम कल इसको दोबारा से, जो आपको पॉइंट ना समझ आए, कल फर्स्ट 10 मिनट्स में आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। ये सर रिस्क है। हाँ, हाउ टू मैनेज द चैलेंज, यहाँ से आपने यहाँ पे लेके आना है इसको। ये सोर्सेज हैं आपके सारे रिस्क के, और ये है कि कैसे उसको मैनेज करना है। ये आपका फ्लैटन द कर्व, यहाँ से ये डिसरप्शन आई तो यहाँ से आप यहाँ पे आते हो सीधे, ये फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ये इम्पैक्ट को एम्ब्रेस करेंगे। यहाँ पे लॉस हुआ, यहाँ पे मजीद लॉस हुआ। अब आपका जो रिस्क मिटिगेशन जो आप बात कर रहे थे, आप कर रहे थे रिस्क मिटिगेट कैसे करते हैं, आपने पूछा। मिटिगेशन प्लान यही होता है कि आपने इम्पैक्ट आएगा, उसको एब्जॉर्ब पे कैसे करना है और वापस इस ट्रैक पे कैसे जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने की बजाय अगर यहाँ से आप रिकवर कर लें तो बेटर है। और ये अगेन प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा, केस टू केस वेरी करेगा, लेकिन प्रिंसिपली आपके पास ये इंटैक्ट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। इसको बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी बोलते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रप्शन, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान किस तरह से होगा। ये बिजनेस वल्नरेबिलिटी डेफिनेशंस हैं कुछ बेसिक सी। देन रिस्क और मिटिगेशन के टैक्टिक्स बताए हुए हैं। ये सारे तरीके, आप रिस्क को जो आप पूछ रहे थे कि कैसे मिटिगेट करना, ये है कि आप रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस को जॉट डाउन करें पहले, क्या क्या हो सकता है, फिर उसको हमने कैसे प्लान करना पूरा, कि किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी वो बताई हुई है। ये रिस्क रिडक्शन टैक्टिक्स साथ उसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, इजी है। मुश्किल कर दें, मुश्किल कर दें। सरकास्टिक